My name is Abdul Rahman Siddiqui, and I'll be your host for today. I am the department lead for research at Foundation Securities, and we are joined by the management team of Panther Tires Limited. In house, we have Mr. Faisal Iftikhar, who is the company CEO, followed by Mr. Ghulam Abbas, who is the Chief Financial Officer, and Mr. Mohsin Bhatt, who is the company secretary. This is a brief introduction of the management team. From now Yeah. on, Mr. Ghulam Abbas will run you through a presentation that will be followed by a Q&A session. If you have a question, you can always put it in the chat box, or you can always raise your hand and we will put your question forward to the management. Ghulam Abbas Saab, the floor is yours. Please go ahead, sir. Thank you so much, Abdul Rahman, uh, for leading this session. This is Ghulam CFO of Panther Tires Limited, and we have with us our Chief Executive Officer, Mia Faisali, who is here with us for last more than 20 years now. So before we start the presentation, I would engage him for a CEO session. By the time, let me share my presentation. Abbas Saab, it is perfectly visible, sir. You can go ahead. The company and at the same time the opportunities that we are looking into. And then at the end of the presentation, we will be having question and answer session. I will be focusing on core areas which have already not been disclosed in the financial statements. All the data is obviously the same, but I will give you the briefing that is not already given in the financial statements. And I will try to keep myself brief and crisp so that we can spare our time for the question and answer session. I know you people have so many queries which will be inshallah addressed adequately at the end of the session. CEO will be joining shortly. So once he joins, we will engage him for his session. So these are the key products that currently Panther Tires manufacturing. We started our journey in 1985 with the manufacturing of motorcycle tire here in Pakistan, and this is the first company that produced the motorcycle tire here in Pakistan. And then the company, after decades of successful manufacturing experience of motorcycle tires, when the company successfully substituted the imported tires coming from different European markets, then company entered into the manufacturing of rickshaw tire almost in 2002, 2003. And that was also the first that was also the proud moment for the company to be the first rickshaw tire manufacturer here in Pakistan. And then in 2018, the company entered into the manufacturing of light truck tires. And in 2009 and 2010, the company entered into the manufacturing of tractor tires, and it was the second company at that time because General Tire was already there in the tractor tire category. So Panther Tire was a second in that category, and by in due course of time, we added few others like modification variants of these categories, and now we have reached to the highest and most sophisticated tires of the world, that is OTR, off the road tire, that is so big. मतलब इसका कुछ 4 या 5 लाख की इसकी कीमत है और इसका तकरीबन 200, 250, 300 kg का वेट है. तो दिस इज द हेवीएस्ट टायर दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, एंड वंस अगेन we feel proud of this achievement because we are the first company here in Pakistan that has produced this category of tire. So over the period of time, when we started from this production of small tires, over the period of time, we shifted our focus to the heavy tires with more value additions. So far we have almost have achieved almost 40% of the sales in the heavy tires categories that include light truck, heavy truck, tractor, OTR, and other category of tires.
remaining 50 to 55% is being manufactured in the small category. This is already given in the financial statements. So, gentlemen, we are SAP run business. It's been like more than a decade or so that we shifted our business to SAP. In 2013-14, we transformed the whole operations of the company, including manufacturing, supply chain, to SAP. We are Petra rated company. We have been given many of times Consumer Choice Award. We have been awarded with Brand of the Year Award and so many other accreditations we have with us. Our products that we export to European markets are certified like EA because that is the necessary requirement for any product in the auto parts category to be exported in European markets. So since we are already exporting our tires to European markets, some of the European markets, so we have obtained this certification as well. So all the big customers other than cars are our customers, Miller Tractor, Al-Ghazi, and so many others. The Chinese are local. Since we are not manufacturing car tires, so there is no OEM present here that manufacture car tires. Yamaha or Suzuki. Suzuki is of a bike category. We are the 100% supplier of Suzuki bikes tires. We are also the suppliers of some of the key institutions like Pakistan Army, Sui Southern Gas, FWO. So there are number of institution customers that are our regular customers. We will be discussing this later in detail. This is the sales growth of the company. First chart depicting the sales growth that we have had achieved over the period of 5 years, and just check the CAGR. This is almost 25%. And probably a few of you would have been researching on tire market. Organically, this market is not growing more than 10% with a rate more than 10% or 10 or 12%. But this company has always managed to get the growth in excess of the organic growth of the market. Yes, इसमें inflation का factor भी है, but in quantitative terms, we have always beat the market growth rate just because of two reasons. Because we have gradually introduced new products in our portfolio that has added new shares. And secondly, we have always focused instead of getting into the local competition, we have always preferred to be in competition with the international players who supply tires over here. So far we have been successful in substituting the imported products in all the categories we are manufacturing tires, like be it a light truck tire or tractor tire or rickshaw tire or OTR tires. So we are aggressively pursuing those areas to substitute the import. So that should be good for us and for the country as well. And in the export segment, we have alhamdulillah reached to the level of 3.5 billion, although this also includes the exchange rate difference as well. But in the dollar terms, we are regularly achieving growth of 17-18%, which is also healthy growth. And since it's international market is huge and we are adding country regularly, so as the time passes, we are expecting our products will get accepted in the international market, and we are expecting that this growth momentum will improve in the foreseeable future as well, inshallah. अच्छा जी, ये gross profit, net operating profit, finance cost, net profit before tax, ये consciously मैंने सारी चीजें इस sequence में develop की हैं ताकि पहले gross profit है, आप in terms of percentage देखेंगे, yes, we are just
pocketing growth of 14 to 15% of GP. But in terms of absolute numbers, we have grown up from 1.3 billion size to 4.3 billion gross revenue in last year 2024. And this is just because of the volumetric growth that we are pocketing. तो हमारा टारगेट ये था कि हम अपने वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ को फोकस करें. ये दिस हैज बीन द स्ट्रेटजी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी. तो उससे इवेंचुअली ऑल्दो सम टाइम वी सफर्ड बिकॉज ऑफ लो ग्रॉस मार्जिन, बट इन एब्सोल्यूट नंबर्स it also provided us a room to absorb the other escalating costs. So हमने 4.3 बिलियन का जीपी लास्ट ईयर अर्न किया, जो कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा है. हमारा जो बेस्ट साल रहा वो 2021 रहा, लेकिन हम आगे जाके देखते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट हमारा 1.2 बिलियन था. मैंने प्री टैक्स फिगर कॉन्शियसली ली हैं क्योंकि टैक्स में हमारी वेरिएशन रही है, सुपर टैक्स आ गया या उसके बाद फिर टैक्सेशन में चेंजेस आई हैं रजीम में. तो मैंने प्री टैक्स और डेफर टैक्स की वजह से भी तो मैंने प्री टैक्स फिगर्स ली हैं ताकि एक सिमेट्री आप लोगों को नजर आए, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस तो प्री टैक्स तक है, बाकी फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो टैक्सेशन को किस तरह रेगुलेट कर रही है. तो 21 was the best year in the history of the company in terms of profitability, but in terms of net profitability. बट आप जीपी में देखेंगे तो जीपी में हम ग्रेजुअली एब्सोल्यूट नंबर में ग्रो कर रहे हैं. दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ हायर वॉल्यूम्स, and we have always preferred this like path of getting growth, क्योंकि इससे although अगर इसमें in terms of percentage gross profit उस तरह अगर ग्रो नहीं भी करता, but we always give first priority to the volumetric growth. तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ में आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 2 बिलियन में हमने जो बाकी अपनी मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एडमिन में पे करके तो 2.3 बिलियन हमारा नेट प्रॉफिट था. दैट आल्सो वाज द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. अब नाउ हियर कम्स द कैच. अब फाइनेंस कॉस्ट ने वो 2.3 बिलियन था, जो कि विच वाज ऑलमोस्ट मोर देन 40-45% हायर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर. तो इसने 1.488 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट अप किया, एंड देन वी एंडेड अप हैविंग अ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 896 मिलियन. अगर हम 2021 जो हाईएस्ट प्रॉफिट वाला साल था उसको डिस्कस कर रहे हो, तो ये साल में हमने स्लाइटली लोअर प्रॉफिट अर्न किया. बट यू सी 2021 में हमारी 300 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट थी. अब हम इस जो प्रॉफिट हमने अर्न किया इसमें हम 1.4 बिलियन की फाइनेंस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो फाइनेंस कॉस्ट के बढ़ने की एक रीजन तो हम सबको ही पता है, वो डिस्काउंट रेट का फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से. लेकिन चूंकि कंपनी रिसेंटली एक्सपेंशन में रही है फ्रॉम लास्ट 2 और 3 ईयर, तो एक्सपेंशन में यू नो के अब इसमें हमारा डेट का कंपोनेंट है, ऑल्दो इसमें इक्विटी का कंपोनेंट भी है, बट चूंकि मेजर एक्सपेंशन थी ऑलमोस्ट 7 बिलियन की, तो इसमें डेट का भी कंपोनेंट है. तो चूंकि जिस तरह ही एसेट्स आप कैपिटलाइज करते हैं, इररिस्पेक्टिव इफ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और नॉट, उसकी फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल को हिट करना शुरू कर देती है. तो अभी चूंकि बहुत सारे एसेट्स हमारे ऐसे हैं, ऑल्दो दोज एसेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड ऑन दोज एसेट्स, the corresponding finance cost is being expensed out in P&L. So this is another reason for this much of finance cost. So as the time progresses, when we achieve higher capacity utilization level, जो ये assets जो हमने लोन लेके जो assets बनाए हैं, जब ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो होपफुली जो उनके पोर्शन की फाइनेंस कॉस्ट अभी इस पीएनएल को हिट कर रही है वो डाइल्यूट हो जाएगी. तो गोइंग फॉरवर्ड वी सी कि जिस तरह हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकेंगे. ये फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हैं, लेकिन इसमें की रेशियोज जस्ट एक बर्ड आई व्यू देने के लिए यहाँ शेयर की हैं. आप देखें हमारे जो टोटल एसेट्स का टर्नओवर है वो 1.39 टाइम्स है 2024 में. इट शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स आइडियली. अब ये आप देख लें जितनी हमने कैपिटलाइजेशन की है, वी आर जस्ट यूजिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दोज एसेट्स.
तो इससे आपको पता है उससे डेप्रिसिएशन बाकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ती हैं, जिससे मार्जिन कंपनी के शुरू में इफेक्ट होते हैं बट ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करते हैं। बाकी करंट रेशो भी ऑब्वियसली जब हमने एक्सपेंशन स्टार्ट की 2022 में, उसके बाद बड़ी तेजी से चेंजेस आई उसमें, मार्कअप कॉस्ट में चेंज आई, फिर एक्सचेंज रेट में वेरिएशन आई। तो चूंकि हमारी ज़्यादातर जो मशीनरी थी वो थी इम्पोर्टेड, तो एक्सचेंज रेट की वजह से भी हमने जो ओरिजिनली प्लान थी कॉस्ट की थी उससे हम ओवररन किए। तो उसको हमने अपने ऑपरेशन से मीटअप किया, तो जिसकी वजह से करंट रेशो slightly lower than 1, although there is now no restriction from the SPP or any bank for this ratio, बट फिर भी आइडियली हम समझते हैं यही है कि 1:1 की रेशियो तो बेहतर होगी। तो इस पे हमने सब्सिक्वेंटली काम किया है, सिंडिकेटेड लोन हमने लिया है, शॉर्ट टर्म लेके हमने लॉन्ग टर्म लेके शॉर्ट टर्म पे ऑफ किए हैं, तो इससे ये फर्दर इंप्रूव हो गई है 0.94 पे। आप सितंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे तो वहाँ ये इंप्रूवमेंट नजर आएगी। बाकी जीपी की परसेंटेजेस आप देख लें, हम फेयर मिल हुई 14-15% की रेंज हमारी चल रही है हिस्टोरिकली, उसी रेंज के अंदर अभी भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। Profit after tax, yes, it has decreased a bit just because of higher taxation and because of higher markups. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने जो अपलोड की थी उसमें सिर्फ हमने दिया था कि जी केपेक्स हम ओपनिंग क्या था, इस साल क्या किया है। फिर मैंने सोचा आपको थोड़ी बेहतर पिक्चर देनी चाहिए इसमें। आप देखेंगे इसको थोड़ा मैंने कैटेगराइज किया है कि अगर लैंड के ऊपर हमने पैसे लगाए हैं 2022 में लगाए थे, टोटल ये तकरीबन 6.8 6.9 बिलियन का कैपेक्स है दैट वी हैव अंडरटेकन इन लास्ट 2-3 इयर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो दिस इज गुड फॉर अस फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। करंटली आप देखें हमने 30 अरब की सेल की है, तो नेक्स्ट 4 ईयर अगर हम 10-12% की ग्रोथ पे भी चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला 45-50 बिलियन तक कंपनी को लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलर इज द केस विद द पावर एंड यूटिलिटीज वी हैव नाउ। आपको पता है ये 5 मेगावाट पे यहाँ पंजाब में रिस्ट्रिक्शन है कि आप उससे ऊपर लोड वापदा से नहीं ले सकते, देन यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन ग्रिड स्टेशन। तो हमने अपना ग्रिड स्टेशन अपना बिल्डअप किया है, फिर हमने बाकी स्टीम के लिए अपने रिसोर्सेज एडिशनल डेवलप किए हैं। तो हमारे पास अब मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, पावर के भी और स्टीम के भी, जो कि इंशाल्लाह हमारी अगले 5 साल की नीड्स को पूरा करेंगे। फिर मिक्सिंग डिपार्टमेंट में हमने यहाँ दो चीजें की हैं। एक तो बिल्डिंग हमने पहले हमारे पास थी, मिक्सिंग मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। तो इसको अपग्रेड रखना इंतहाई जरूरी था। पहले हमने 2011-12 में मिक्सिंग की बिल्डिंग और सारी मशीनरी लेके आए थे, तो अब हमने 2023 में और 24 में इसके अंदर बिल्डिंग भी बिल्कुल नई स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी के मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बनाई है, ताकि हम अपने आप को पोजीशन कर सकें टू प्रोड्यूस हैवी वैल्यू एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हमने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन की। अब ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर कैलेंडरिंग डिपार्टमेंट है। ये जो पहले कैलेंडर हम यूज कर रहे थे वो 20-25 साल पहले का था, तो हमने ये इटली से इंपोर्ट किया 2023 के अंदर ये आ गया था। फिर इंस्टॉलेशन में 6-8 महीने इसके लगते हैं। तो ये 1 बिलियन का था। इसमें इसके साथ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग भी हमने बनाई है जो कि मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के मुताबिक डेवलप की थी। तो कैलेंडरिंग, तो टायर के अंदर जो सबसे क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं वो मिक्सिंग है और कैलेंडरिंग है। तो हमने दोनों अपने प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज कर लिया है, नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं। इंशाल्लाह इसमें एफिशिएंसी भी आएगी और क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी, और दिस विल आल्सो गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर सोफिस्टिकेटेड टायर्स। फिर फ्रंट एंड मशीनरी है। यहाँ हमने 2 से 3 साल की, क्योंकि फ्रंट एंड में डिपेंड करता है मार्केट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, कोई प्रोडक्ट इन हो रही है, कोई आउट हो रही है। तो यूजुअली फ्रंट एंड को लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसमें हमने 2 से 3 साल, कुछ कैटेगरी में हमने 2 साल की किया, कुछ में 3 साल की किया, तो 2 से 3 साल हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर हम इसी पैटर्न पे आके नीचे देखें, अच्छा, अभी अभी इस सारे में से 2 बिलियन का अभी हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो स्टिल लाइंग इन दी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
बिकॉज ये आपको पता है एक मेजर एक्सपेंशन थी। अब कंपनी ने ऑलमोस्ट हमारे पहले जो एसेट्स थे वो 6 बिलियन के थे, हमने 7 बिलियन की एडिशन कर लिया है। तो हमने मतलब इसका साइज कंपनी का डबल कर लिया ऑलमोस्ट। लेकिन डबल के साथ साथ हम नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं और अपनी नई जो एक हमारी एक स्प्री थी टू गेट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू टायर्स, वो भी हमें इसमें भी फैसिलिटेट करेगी ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये जो कैपेसिटी अभी हमने दी है टायर्स की, 9.7 मिलियन टायर ट्यूब्स की, ये अभी एज ऑफ 30 जून 2024 है। जो बाकी अभी प्रोजेक्ट्स CWIP में है उसकी कैपेसिटी सब्सिक्वेंटली इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो आप देखेंगे कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो मतलब अभी भी इसके अंदर गैप है, इसलिए हमने लिखा कि ये 3 साल तक ये हमें सपोर्ट करेगी। तो और ट्यूब के अंदर भी ये हमें हमारा काफ़ी गैप है, ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इंशाल्लाह ये हमें अपने फ्यूचर के जो ग्रोथ प्लान्स हैं उसमें ये हमें सपोर्ट कर रही होगी। अच्छी चीज़ ये है कि जब हम वो ग्रोथ ले रहे होंगे तो हमें एक जो फंड रिजर्व करना होता है केपेक्स के लिए, वो मिनिमम करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ से देखें तकरीबन 60 से 70% इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी की वो बैक एंड प्रोसेसेस में होती है, जिसमें लैंड, पावर, मिक्सिंग, कैलेंडर। तो हमने 60-70% इन्वेस्टमेंट अगले 5-6 साल के लिए ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो हमने एक्सपेंशन में जाना है, अगर बियॉन्ड अभी 25 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी तो प्रोसेस में है चीज़ें। तो हमें 3 या 4 साल बाद सिर्फ फ्रंट एंड में इन्वेस्टमेंट करनी है एंड वी कैन एड द एडिशनल कैपेसिटी इनटू आवर पोर्टफोलियो। अच्छा, पहले कुछ CSR रेगुलरली कंपनी CSR एक्टिविटीज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक्टिविटी करती थी, उनके इवेंट स्पॉन्सर्स करती है, वहाँ डोनेशन हम देते हैं। फिर हमने कुछ इवेंट टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल को भी स्पॉन्सर किए हैं, जस्ट बिकॉज टू डेवलप दी कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स ऑफ द अपकमिंग लॉर्ड्स ऑफ आवर जनरेशन। और इस पे हमने इस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे भी काम किया है। नो फ्यूचर आउटलुक, अब इसमें 3-4 बड़े इसके अंदर मैं अपॉर्चुनिटीज भी कवर करूंगा और चैलेंजेस भी मैं एट द सेम टाइम चारों कैटेगरीज में शेयर कर रहा हूँ। स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, ये it has been a big issue for all the tire industry here in Pakistan, although recently government has taken some concrete steps on this। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में पहले टायर्स आते थे, अब वो मतलब अब वो नहीं आ रहे, वो अलाउड नहीं है, वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर ली है। लेकिन अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग वाला कंपोनेंट अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद है, बट लेकिन वो हमें इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 to 15 देर इज ओनली 10 to 15% portion of our sale compete with these smuggled or under invoiced items। Otherwise remaining 80 to 80 remaining 80 to 85% products are being supplied locally and we are competing with the local suppliers। तो वहाँ हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता, तो हमें लोकल कंपटीशन का इम्पैक्ट आता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट इज द बिग मार्केट। आप अब ये पाकिस्तान के अंदर से टायर एक्सपोर्ट करना, यू विल प्राइज दिस फैक्ट कि इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हम लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, कोई हमारी कहीं कोई जॉइंट वेंचर नहीं है विद आवर ओन टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्पॉन्सर्स विजन and their technical skill know-how, they have produced the tires of of sophisticated quality and that are being exported to different countries। जिसमें बड़ा हमारा जो मुल्क है वो टर्की है, इजिप्ट है, ब्राज़ील है। फिर हमने मैसेडोनिया में, फ्रांस में यहाँ भी अपने टायर एक्सपोर्ट कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया है, इराक है। तो हम यहाँ बहुत सारे मुल्कों में टायर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और क्योंकि साल 2 साल 3 साल की टायर की लाइफ है, तो रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, नए कस्टमर उस पर शिफ्ट होते हैं।
तो हमें ये इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अब आप देखें ना, हमारी कंसिस्टेंट ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां जिस पे आप compete करते हैं। एक तो क्वालिटी, दैट शुड नॉट बी लेस देन द टायर बीइंग सप्लाइड इंटरनेशनली। वहां आप चाइना के साथ भी compete कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी compete कर रहे हैं, और बाकी कंट्रीज की प्रोडक्ट्स के साथ भी compete कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल मार्केट में देनी होती है। तो आप जो ग्रोथ है वो ये बता रही है कि क्वालिटी हमारी मार्केट वहाँ एक्सेप्टेबल है, जिसकी वजह से रिपीट ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, ग्रोथ मिल रही है। तो क्वालिटी वाला एस्पेक्ट तो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। फिर सेकंड कंपोनेंट होता है आपकी प्राइसिंग का, क्योंकि आप अगर प्राइस में कंपेटिबल नहीं है, वो चाहे लोकली है या इंटरनेशनली है, तो आप यू ऑलवेज सफर, मतलब देर यू ऑलवेज फेस विद वेरियस चैलेंजेस। तो यहाँ भी हमने बहुत काम किया है, मतलब पिछले सालों में भी, अभी जो हमने एक्सपेंशन किया है इसमें भी हमने इस चीज़ को बड़ा, मतलब बड़ा इवेल्युएट किया है कि वी नीड टू मेक आवर प्रोडक्ट cost effective so that we can compete with other international manufacturers in the international market. So we are hopeful that our growth momentum that we have already gained will remain, will stabilize, not only stabilize, will gain momentum in the foreseeable future as well. एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन, इसको मैंने बहुत हद तक कवर कर लिया है। तो इसका इफेक्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह, जो अभी हमने एक्सपेंशन की है, हम ऑलमोस्ट 40-45 बिलियन की जो सेल है वो इसी एक्सपेंशन से हम अचीव कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो वो हमें सिर्फ फ्रंट एंड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बैक एंड जो हमें प्रोसेस है वो सपोर्ट करेगा अगले 6-7 साल के लिए। Thank you. Now the house is open for question and answer session. Thank you so much, जी Abhasab, for the रहमान भाई। detailed presentation. Thank you. Uh, Ladies and gentlemen, if you have a question, you can always put it in the chat box or you can raise your hand and we'll unmute you and you can go ahead with your questions. We have a fair few in the chat box, Abbasab. I would like to start from those first and then we can move to our raised hands. The first question is from the line of Shiraz Sheikh. He's asking, what about your new plant installation? How much time? I think you have already answered it, so I won't repeat it. Uh, Junaid Khan is asking, sir, what is the current market size and the impact of Afghan trade issue? Abbas, am I audible to you? First question, G, what the about first, your plant installation? How G, much time it required to start? देखें, इसमें से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द, हमने नया प्लांट नहीं लगाया, हमने एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर एक्सपेंशन की है, मशीन्स ऐड की हैं। जिस तरह जो मिक्सिंग की कुछ मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई हैं, दे आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, बट उसके जो सेकंड पोर्शन है उस पर अभी काम चल रहा है। कैलेंडर है दैट हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड एंड दैट इज फंक्शनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी ऑल्दो कम है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी। लेकिन एक चीज है जो हम इस वक्त जो हमने एक्सपेंशन कर ली है, जो हमारी आगे ग्रोथ की नीड्स हैं, तो वो हमारी एक्सपेंशन उस ग्रोथ की नीड्स को सपोर्ट कर रही है। ये नहीं है कि आज, मतलब नवंबर, अगर नवंबर 2024 में है हम, तो नवंबर में अगर कोई भी हमारी ग्रोथ की या सेल्स की डिमांड है, वो हम इस वजह से नहीं पूरी कर पा रहे हों कि जी हमारे पास मशीन नहीं है। तो जो हमारा प्लान था उस प्लान के मुताबिक हम अपनी जो सेल फोरकास्ट है उसको मीट करने के लिए सारी मशीन जो है ना वो ऑपरेशनल है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम जुनेद खान, करंट मार्केट साइज एंड इम्पैक्ट ड्यू टू अफगान ट्रेड इशू।
अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी एक टीबीबी की कैटेगरी है टायर्स की, जो कि अभी मतलब 5-6% है टोटल सेल्स का। वो compete करती है। यस, वहाँ प्राइसिंग में हमें बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पहले स्मगलिंग की वजह से वहाँ प्रेशर ज़्यादा था प्राइस का। वहाँ प्राइसेस काफ़ी इम्प्रूव नहीं है, तो अदरवाइज कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। मेजर रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड देयर परसेंटेज, या टायर और ट्यूब के कंपोनेंट्स तो डिफरेंट होते हैं, ये तो आप गूगल करेंगे आपको मतलब मिल जाएगा। जनरली जो टायर मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कोई उनकी मिक्सिंग रेशियो में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, लेकिन नेचुरल रबर यस इट्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट। वो तकरीबन 40-45% डिपेंडिंग अपॉन के किस कैटेगरी का आप टायर बना रहे हैं वो है। फिर कार्बन है, फिर बीट वायर है, टायर कॉर्ड है। ये मतलब इनकी मिक्सिंग रेशियो कम होती है, बट आप इसको गूगल करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी आपने कोई चीज़ मेरे से स्पेसिफिकली डिस्कस करनी हो तो आप मुझे मतलब आप अब्दुल रहमान के थ्रू फर्दर पूछ सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट्स एंड पावर मिक्स देखें। पावर की हमारे पास ये मोर देन 11.11 मेगावाट की अपनी जो ग्रिड हमने इंस्टॉल कराई है, उसकी हमारे पास कैपेसिटी है। अभी करंटली हम उसका शायद 60-70% यूज करते हैं, पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स है गैस से पावर जनरेशन का। उससे हमें आजकल वो थोड़ा चीपर है एज कंपेयर टू वापड़ा। तो लेकिन उसका फायदा ये भी होता है, उससे मतलब उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाकी भी हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो दोनों सोर्सेज हमारे पास 7-8 मेगावाट की हमारे पास जनरेशन है स्टीम सॉरी गैस से, और 11 मेगावाट की हमारे पास जनरेशन है। जनरेशन नहीं है मतलब जो हमारे पास फैसिलिटीज हमने ग्रिड स्टेशन लगाया है वो मौजूद है हमारे पास। तो और हमारी रिक्वायरमेंट करंटली 7-8 मेगावाट है, तो हमें मतलब पावर का सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगले 7-8 साल इंशाल्लाह हम सिक्योर हैं इस मामले में। एक्सपोर्ट मार्जिन डेस्टिनेशन रिपोर्ट्स में लिखी हुई है मार्जिन। देखें मार्जिन हम यहाँ बैठ के एनुअल डिस्कस कर रहे होते हैं, मार्जिन तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर डिफरेंट निकल रहा होता है। तो और ये भी डिपेंड करता है, कंपनी हर अपनी ट्रेड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी पे इवेल्युएट करती है। समटाइम कंपनी focuses more on volume. Sometimes company compromise or more on volume and compromise on profitability. Sometimes company compromised on volumes and key focused on profitability. तो असल चीज है कि कंपनी ने टारगेट किया होता है कि साल के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी या क्वार्टर के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी लेके आनी है। तो उस लिहाज से जो की पॉइंट है, मेरे ख्याल है आप सारे बिजनेस को समझते हैं, किसी भी बिजनेस का की पॉइंट है ग्रोथ मोमेंटम। तो एज लॉन्ग एज आप ग्रोथ ले रहे हैं, मार्जिन आपके समटाइम आते हैं, समटाइम आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रोथ इज द की दैट कैन लीड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट हायर लेवल। तो आप ग्रोथ से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आप एफिशिएंट होते हैं, मार्केट शेयर बढ़ता है। तो जिस तरह मैंने अभी ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्शियसली मैंने एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने कि एब्सोल्यूट चाहे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका मार्जिन डाउन भी हो, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में तो वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो जीपी के बाद ज्यादातर फिक्स कॉस्ट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पोर्शन होता है, अदरवाइज एडमिन कॉस्ट फिक्स है। फाइनेंस कॉस्ट आपने चूंकि लोन्स ऑलरेडी लेके यूटिलाइज कर लिए होते हैं, वो भी मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में भी ज्यादा कमा लेते हैं तो वो वहां आपको मार्जिन छोड़ते हैं कि आप नीचे वाली कॉस्ट को एब्जॉर्ब बेहतर तरीके से करें और नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लेके आए। Recently, international rubber prices have been on higher side. Yes, that's true. How much of the cost has been passed on to OEM and replacement market? नहीं अभी तक पास ऑन देखें ये मतलब जो इसमें प्राइस इंक्रीज आई है वो तो स्टार्ट हो गई थी मार्च अप्रैल से, बट उसकी अराइवल मटेरियल की वो इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुई है। और जो प्राइस सर्च है वो मतलब काफी ज्यादा था, लेकिन अब वो दोबारा सबसाइड करना शुरू कर गया। तो सारे का सारा एकदम से आप कोई भी पास ऑन नहीं कर पाता, तो आप ग्रेजुअली पास ऑन करते रहते हैं, लेकिन इसमें सर्ज आई एकदम से। तो वो उसना पूरा मतलब एकदम से पास ऑन नहीं हुआ, तो इसलिए आपने क्वार्टर के मार्जिन पे उसका प्रेशर देखा। बट वो जो नेचर रबर की प्राइसेस हैं या बाकी मटेरियल की प्राइसेस हैं दैट हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन।
What percentage of the total sales come from the replacement market? 70%. और इसमें हम 15% बेचते हैं OEMs को, 15% एक्सपोर्ट मार्केट में, 30% ही हो गया, रिमेनिंग 70% रिप्लेसमेंट मार्केट में। ये मैं समझता हूँ एक स्ट्रेंथ है कंपनी की, क्योंकि OEM में अभी हम एक ये पिछला क्वार्टर है इसमें हमने सफर किया, बिकॉज मिलर इज आवर लार्जेस्ट कस्टमर। वो मतलब वो सेल टैक्स की वजह से, बाकी इश्यूज की वजह से वहाँ उनकी प्रोडक्शन डाउन हुई, बट आप देखें हमारी सेल्स के अंदर उसका इफेक्ट आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो फोकस किया है रिप्लेसमेंट मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट मार्केट में बेचने होंगे, उतनी ज्यादा एक कंपनी की स्ट्रेंथ नजर आती है। और मार्जिन सेम ऑन एक्सपोर्ट एंड लोकल सेल्स। सर ये मार्जिन जो है ना, अब लोकल में भी सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के अंदर भी सेगमेंट टू सेगमेंट, और इवन मंथ ऑन मंथ भी वेरिएशन होती है। आप देखें इंटरनेशनल कस्टमर के साथ आपने बस किया 3 साल की सप्लाई, 3 महीने की सप्लाई का एग्रीमेंट किया है, आपकी मटीरियल प्राइसेस मतलब हर महीने इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, तो आपके मार्जिन इफेक्ट होंगे उससे। डू यू प्लान टू एंटर द 4 व्हीलर पैसेंजर कार सेगमेंट? इस पे अभी कुछ कहना मुश्किल है। व्हाट आर दी योर मार्जिन्स आउटलुक? मार्जिन्स पे हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन ऑब्वियसली अगर मटेरियल की प्राइसेस अगर सबसाइड होना शुरू हुई हैं, अगर ये ऐसी रहती हैं, तो मार्जिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। Rising cost of energy, labor, and other inputs has increased production costs for the tire manufacturer. Has the industry passed on the cost to client customers? देखें, yes, the impact of all these costs has not been fully passed on to the consumer. ठीक है, but by the time we are hoping के it will be gradually passed on to the customers. मिनिमम वेज का इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़े हैं, विंटर पैकेज गवर्नमेंट ने पहले खत्म किया है, उसकी कॉस्ट का इम्पैक्ट है। तो यस, वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ग्रेजुअली वो निकल जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है टेम्परेरीली हमने देखा है कि कभी एक क्वार्टर कभी 2 क्वार्टर में मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन मुझे इस मतलब 12 साल तो कंपनी में काम करते हुए मुझे हो गए हैं, और इस टायर इंडस्ट्री को भी स्टडी करते हुए कभी ये नहीं हुआ। ये होता है ऐसी, अगर एक दो क्वार्टर में मार्जिन का इम्पैक्ट आता है, बट एक दो क्वार्टर अच्छे आते हैं और सारे मार्जिन के इफेक्ट को ऑफसेट कर देते हैं। हिस्टोरिकली ये रहा। तो इस दफा भी हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये इम्पैक्ट भी सबसाइड हो जाएगा और मार्जिन विल बी बैक टू एनुअलाइज। अगर हम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे तो चीजें बेहतर होंगी एज कम्पेयर टू आप सितंबर क्वार्टर के बाद चीजों को देखें। The tire industry relies heavily on imported raw material, but the government restrictions अभी कोई नहीं है यार। मतलब मेरा नहीं ख्याल बड़े मैन्युफैक्चरर्स को रिस्ट्रिक्शन है, शायद कोई कमर्शियल इंपोर्टर को कोई मसला हो। और वैसे भी मतलब टायर इंडस्ट्री ने हमने बिल्कुल फोकस करके, पहले हम 70-75% इंपोर्टेड मटेरियल पे रिलाई करते थे, अब हम ये रेशियो डाउन होके 55 से 60% पे आ गई। How effective are current customer regulation enforcement measures combating tire smuggling? टायर स्मगलिंग तो यार देखें, अब पाकिस्तान का इशू ये है, आप चाहें भी तो टायर स्मगलिंग स्मगलिंग किसी चीज को भी रोकना मुश्किल है, क्योंकि आप पाकिस्तान है लेंथ में, और आपका इतना बड़ा बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ मिलता है, ईरान के साथ मिलता है, तो आप चाहें भी ना, आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज इतने हैं नहीं कि आप स्मगलिंग को कट डाउन कर सके। जो असल चीज है, गवर्नमेंट अगर अंडर इनवाइसिंग को ही कंट्रोल कर ले, वो भी एक बड़ी ब्लेसिंग होगी लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए। Has the reduction in international oil prices led to corresponding decrease in rubber prices? That ये इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, बट ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ इसका डिक्रीज का कोरिलेशन इस वक्त नहीं है। कोरिलेशन है सही, बट ये चूंकि इंटरनेशनल इसकी सप्लाईज में इंटरप्शन थी, जिसकी वजह से प्राइस एकदम से 2-3 महीने में सर्च करती थी, 20% बढ़ गई थी। बट वो अब चूंकि विंटर में आ गए हैं, सप्लाई वैसी, डिमांड थोड़ी सबसाइड करती है विंटर में आके, तो डिमांड के कम होने की वजह से प्राइसेस वापस रूटीन में इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही हैं। Overall economic slowdown in Pakistan has led to decline in demand for tire, particularly for vehicles. यार इसमें OEM का, यस आपकी बात सही है, बट OEM में अगर हम अपने OEM को देखें, मोटरसाइकिल के OEM वो पिछले साल से बेहतर हैं,
ट्रैक्टर के ओईएम पे प्रेशर है, बट लेकिन हमें कुछ इतना इम्पैक्ट उसने नहीं किया। लेकिन रिप्लेसमेंट मार्केट में 22 में डिमांड पे प्रेशर था बहुत ज़्यादा। अब चूंकि इन्फ्लेशन भी कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो लोकल मार्केट में इस वक्त डिमांड में अपटिक है, तो हमें उसमें कुछ चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। Could you please state tire versus tube sales mix in terms of हाउ मच? यार ये थोड़ा आप कैपेसिटी प्रोडक्शन के नोट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। असल में ये भी है, टायर मोटरसाइकिल का टायर है वो, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, लाइक यूजेज पे डिपेंड करता है, लेकिन 1.5-2 साल होती है। लेकिन 1.5-2 साल में जो ट्यूब्स हैं वो शायद 3-4-5 भी ट्यूब्स चेंज हो जाती हैं। तो एक टायर के अगेंस्ट इस तरह जितनी टायर, मतलब टायर की लाइफ ज़्यादा ट्यूब की कम है, तो इतना मतलब उसकी रेशियो ज़्यादा है। तो इसलिए कैपेसिटी प्रोडक्शन में भी अलग अलग ही हमने इसको डिस्क्लोज किया। लेटेस्ट यूटिलाइजेशन ये भी कैपेसिटी प्रोडक्शन का नोट देख लें। लेकिन उसमें कैपेसिटी प्रोडक्शन के नोट में एक चीज़ मैं मिस कर गया। 2023 के अंदर हमें ट्यूब की कैपेसिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। उसकी वजह ये थी 22 में क्योंकि स्लो डाउन था तो स्टॉक हमने कैरी किया था, जिसकी वजह से हमने 23 में प्रोडक्शन कम करनी पड़ी। तो इस वजह से उसकी प्रोडक्शन कम है। बट लेकिन अब तकरीबन प्रोडक्शन सेल्स का मिक्स आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। कुड यू प्लीज स्टेट योर सेल मिक्स इन टर्म्स ऑफ व्हीकल कैटेगरी? यार ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने ब्रॉड आपको बता दिया कि हम मोटरसाइकिल टायर जो, मोटरसाइकिल और रिक्शा टायर जो स्मॉल टायर्स हैं, इसमें हम 50-55% की टोटल शेयरिंग है। बाकी हम 40-45% हैवी टायर की सेल मिक्स में एडिशन कर ली है। डज द कंपनी प्लान्स टू डीलेवरेज इटसेल्फ? ये तो डीलेवरेज लोन है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन है 5 से 7 साल के हैं। टर्फ के लोन तो इतना इफेक्ट नहीं कर रहे, वो 7-8 साल के 10 साल तक जा रहे हैं, वो तो 3% की प्राइसिंग है, वो तो इतना इफेक्ट नहीं कर रहे। जो कमर्शियल डेट है हमारा वो 4 साल का है। एक डेट सिर्फ 5 साल का है, तो वो तो 4 से 5 साल ऑब्वियसली डेट का लेवल नीचे आ जाएगा। We witnessed a dip in margin in first quarter 25. Was it because of increase? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैन वी टेक क्वेश्चन फ्रॉम दी रेज्ड हैंड? हाँ जी बिल्कुल तो रहमान भाई, ये तो बस खत्म हो गया। इसके बाद हम योर कैपेसिटी एक्सपेंशन हैज आल्सो अराइव्ड एंड सर्विस हैज आल्सो एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी, व्हाट इज योर आउटलुक? देखिए लोकल कंपटीशन तो मतलब हमेशा से ही है, अदरवाइज ये कंपटीशन ना हो तो जहाँ कंपटीशन नहीं है उनके मार्जिन आप 10-15% है, आप देख लें। तो अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उससे कंज्यूमर का भी फायदा है। एक रीजनेबल देखें अर्निंग हो, मैन्युफैक्चरर भी पा रहा हो, उसका फायदा मतलब कस्टमर भी ले रहा हो। लेकिन मतलब जो नॉर्मल मार्जिन है 15% के, 20% के, वो या तो मोनोपोली का फैक्टर उसके अंदर होता है या बाकी अदर चीजें होती हैं। वो नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, प्योर मार्केट फोर्सेस पे चीजें चल रही होती हैं। हर कंपनी की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अपनी सेल की स्ट्रेटजी है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो वो उस पे जो है ना अपनी स्ट्रेंथ पे और अपनी जो है ना अपॉर्चुनिटीज पे कंपनीज इसमें ऑपरेट कर रही होती हैं। ओटीआर टायर सेल ये हमने अभी तो पिछले साल जो 24 का साल था इसमें तो हमने इसकी कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट की है। जो मशीन्स अभी पहुंची है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 25 में, ये अभी लगेंगी, तो इसके अंदर सेल्स के अंदर ग्रोथ इंशाल्लाह ये डबल ट्रिपल हो जाएगी इसकी सेल। विच रॉ मटेरियल यू इम्पोर्ट एंड व्हाट इज द परसेंटेज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जी। अब्दुलरहमान भाई आप जिनके हैंड रेट्स हैं उनसे ले लें क्वेश्चन। Thank you so much. Thank you so much, Abasa, for all the answers. Moving on to the raised hands, we have Mukeet Naeem. Mukeet, your line is open. Please go ahead with your थैंक यू अब्दुल question. रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मार्जिन्स पे और रबर प्राइजेस पे डिस्कशन हो गई है। जस्ट वांटेड टू हैव योर व्यू ऑन अपकमिंग क्वार्टर मार्जिन्स। लाइक फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन्स डिप हुए 11% के, और जो रबर प्राइसेस हैं वो आई बिलीव अगस्त सितंबर अक्टूबर में काफ़ी हायर एंड पे रही हैं, और आपने कहा कि आपने पास ऑन नहीं किया इम्पैक्ट। तो कंसिडरिंग विंटर में डिमांड भी कम होती है, तो दिसंबर और मार्च क्वार्टर के मार्जिन्स हम मज़ीद डिप देख सकते हैं यहाँ से, या इन लेवल्स पे सस्टेन कर जाएंगे 11-12% के लेवल्स पे? यार ऐसा नहीं है कि फर्दर डिप्लीट नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है, क्योंकि मतलब वी आर वेरी क्लोज टू द क्लोज ऑफ सेकंड क्वार्टर। तो कोई ऐसी कंक्रीट स्टेटमेंट देना थोड़ा मतलब इज नॉट वाइज अप्रोच। बट एक जनरल यही है कि नहीं, मार्जिन में जो
डिप था, जो क्योंकि पीक कर गई है, क्योंकि ये वेटेड एवरेज पे चल रही होती है ना हमारी। आप रॉ मटेरियल की आप पॉलिसी देखेंगे तो हम वेटेड एवरेज पे कॉस्ट को चार्ज करते हैं। तो हम ऑलरेडी हायर जो कॉस्ट वाले मटेरियल्स हैं उसका इम्पैक्ट ले चुके हैं। तो आगे जाके मार्जिन्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी अभी मार्च क्वार्टर के वो हो जाती है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में मैं आपको कह सकता हूँ कि फर्दर डिप वाला मतलब पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। इंशाल्लाह बेहतर ही रहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, रेवेन्यू से मेरी रिलेटेड क्वेश्चन मेरी है। रिक्वेस्ट है कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आपको पता ही है इसमें थोड़ी अ, मतलब हमें केयरफुली आंसर करना होता है। हम थोड़े बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के या इस तरह की चीज़ों के उसके बारे में क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड। मैं फिर ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाता हूँ। गॉट इट गॉट इट। अच्छा सर, एक्सपोर्ट्स आपने बताया कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और आपने डेस्टिनेशंस भी बताई। जस्ट वांटेड टू आस्क, किन प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लाइक 2-3 व्हीलर्स के टायर्स को यार अभी आप हमारी सारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी रेंज या? सारी रेंज एक्सपोर्ट हो रही है इस वक्त। ओके। सारी ट्रैक्टर का टायर, ओटीआर का टायर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सारी रेंज है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट ईयर जब ब्रीफिंग हुई थी तो आपने एक रेवेन्यू का टारगेट भी दिया था, एंड यू अचीव दैट टारगेट इन FY 24। सो दिस ईयर आप कोई रेवेन्यू का टारगेट देना चाहेंगे? बता दें, हाँ हमें पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो ठीक है। आपको अच्छा। इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर्स मिलेंगे। ओके सर, वन लास्ट देखिए क्वेश्चन। आप इस साल आप देखेंगे ना, अगर हम देखें तो ये जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं इसमें जो सेल प्राइसेस हैं वो 2023 की हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की। तो आगे आप अगले अगर इस साल डिफ्लेशन का फैक्टर आता है तो उससे शायद हमें वैल्यू में ग्रोथ किसी कंपनी में नजर ना आ रही हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ग्रोथ होगी। मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। Yes, sure, sir. Thank you for your response. Omar, if you can go ahead and ask your question. ठीक है, उम्र नहीं है शायद, नेक्स्ट आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी बस मैं अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी सो सर, मेरा ये सवाल था कि आपने बताया आपकी पावर आप इस वक्त ग्रिड से ले रहे हैं और साथ में आपके पास गैस का कैप्टिव यूनिट भी लगा हुआ है। तो गिवन दैट यू are competing in the export market and you're hoping to grow there, don't you think it would be wiser to pursue a solar option? क्योंकि IMF की तरफ से तो कैप्टिव गैस बंद करने का कहा जा रहा है, साथ में ग्रिड की पावर कॉस्ट तो आपकी competitive नहीं रह रही। If you're in a competitive market, wouldn't you want the cheapest power? देखिए, जो कोजेंट्स की ऑप्शंस है ना वहाँ अभी बंद करने का नहीं कहा गया है। तो वो मतलब वो ऑप्शन अभी है। मतलब पहले ये तो साल 2 साल पहले की बात है ना, जब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि सिर्फ जिनके पास एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक साइड है, हमारे पास को जनरेशन है इसकी, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये। बाकी सोलर वाला देखें, डिफरेंट चीपर ऑप्शन। अब देखें, आप सिर्फ एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, आप कि जी सोलर ले लें। कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी हर टाइम पे सारी डिफरेंट ऑप्शंस को मिला के इवेल्युएट कर रही होती है कि इस वक्त आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आपने 5 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को पहले चूज करना है। ऑब्वियसली ये जो हमारी ऑप्शंस हैं उसकी लिस्ट में ये मौजूद है, बट हम कौन सी चीज किस वक्त कर रहे होंगे ये जरा इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है। Okay, thank you, sir. My next question is regarding long term loans. तो essentially आपने ये बताया कि आपकी कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपने लॉन्ग टर्म पे चेंज की है। मैं अगर आपकी बैलेंस शीट देखूं तो तकरीबन 500 million, आर यू स्टिल देयर? चलें वेट कर लेते हैं। Just 1 second. Let's wait for Abbas Saab to come back online and then. जी, आवाज आ रही है आप?
जी Yeah, yeah, बिल्कुल। perfectly audible, sir. जी जी, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। जी, गैजेट्स तो मैं आप। कह रहा था कि आपने बात की है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से आपने कुछ अमाउंट मूव की है इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स, ताकि आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा टेपर डाउन करें। बट व्हाट आई एम सीइंग इन योर बैलेंस शीट इज दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हैज गॉन डाउन बाय 500 million whereas long term loans have gone up by 850 million. So am I correct in assuming कि न्यू प्लांट ऑनलाइन होने की वजह से कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये डिफरेंस? जी ऐसी है। अब आप देखें जो अभी जो ऑफ सीजन है ना, जनरली ये होता है कि ऑफ सीजन में सेल्स टायर इंडस्ट्री की कम होती हैं। बट टायर इंडस्ट्री प्रिफरेबली जिनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा हैं वो अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन रखते हैं, सो दैट इन समर जब सेल आपकी मतलब बम्पर सेल्स होती हैं उस वक्त आपको प्रोडक्शन में एबनॉर्मल वेरिएशन ना लानी पड़े। तो इन ऑर्डर टू लाइक मेंटेन द प्रोडक्शन एट अ सर्टेन लेवल, तो कंपनीज विंटर में इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं स्टॉक्स के ऊपर और समर में वही स्टॉक को सेल कर रही होती हैं। तो इससे जो शॉर्ट टर्म की यूटिलाइजेशन दिसंबर में फर्दर इंक्रीज करेगी स्लाइटली। ओके। और सर, आपकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है उसका हाउ मच ऑफ योर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज लिंक्ड टू द काइबोर रेट? क्योंकि इसमें आपको जो ब्रेक डाउन इन मिला हुआ है एनुअल, उसके अंदर क्लियर नहीं हो रहा कि कितनी सेंसिटिविटी आएगी। यार ये 700 मिलियन है जो ईएफएस से रिलेटेड है। ओके। और बाकी सर, आपके कंपेटिटर हैं सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स, तो मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट से काफ़ी अलग है। डू यू थिंक दैट्स अ स्पेस यू वुड वांट टू वेंचर इनटू द ऑल स्टील ट्रक बस एंड रेडियल टायर्स, और डू यू थिंक कि आपकी जो अभी नीश बनी हुई है इट सर्व्स यू बेटर? यस वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अभी पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा। लेकिन वो ऑप्शन है जिसमें मैंने पहले कहा कि हर कंपनी हर बिजनेसेस अपनी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो जो भी उसमें हर वक्त, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर तो आपको पता है जब हम डेली आते हैं टॉप लेवल की जितनी भी लोग हैं ऑपरेशन तो चल रहे होते हैं। तो वो फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें हर चीज़ अंडर डिस्कशन होती है। तो लेकिन ऑब्वियसली मतलब उसमें कौन सी चीज़ कब मेच्योर होती है वो ज़रा मतलब वो डिपेंड करता है ना, मैनेजमेंट क्या डिसीजन किस वक्त पे लेती है। लेकिन अंडर डिस्कशन सारी चीज़ें होती हैं। ओके। और सर, आपकी लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट्स के डॉलर का फिगर बता सकते हैं क्या? या $13 मिलियन। चलें, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। Thank you, Ma, for your questions. We can move forward with Malik Abdul Moiz. Moiz, your line is open. Please go ahead. Uh, yes, thank you so much. Sir Ghulam Abbas sir, this is Abdul Moiz from Maple Leaf Capital. First of all, sir, thank you so much for such a detailed presentation. एंड सर, जिस तरह अभी आपने बात की है कि द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड ऑर्गेनिकली, मैं उस लिहाज से थोड़ा प्रोडक्शन के लिहाज से बात करना चाहूँगा कि इन द पास्ट ईयर द कंपनी इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय अराउंड 44% in the tires and tire set side. So I would like to know that what growth can we expect in the production for the next year? जिस तरह आपने केगर की बात की है, क्या हम केगर को ही assume कर सकते हैं कि in the next year company will assume the same growth? तो उस बारे में थोड़ा आप बता दें कि क्या increase expect कर सकते हैं हम? ठीक है, हम ग्रोथ को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देख रहे होते हैं। तो हमें उसको डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ कितनी है और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उसके अंदर कितना है। तो जो 25% का हम केगर की बात कर रहे हैं इसके अंदर ऑब्वियसली दोनों कंपोनेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी है और इन्फ्लेशन का फैक्टर भी है, जो कि हमने पिछले 2021 से ऑनवर्ड हमने इन्फ्लेशन देखी, 21 से 24 तक 3 साल है। तो अगर हम इसको मतलब माइनस भी कर दें इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को और हमारी अपनी एक देखें इस पे कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये भी इंडस्ट्री अभी पिछले 4-5 साल में इस इंडस्ट्री के ऊपर काम होना शुरू हुआ है। कंपनी मतलब हमने लिस्ट कराई, कंपनी बाकी है, तो इस पे लोगों ने अब काम करना शुरू किया है। तो कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी ऐसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बात है कि तकरीबन ये 10% के रेट से ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो टायर ट्यूब की कंजम्पशन है ये ग्रो कर रही है।
तो एटलीस्ट 10% की ग्रोथ तो हम क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो मार्केट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मतलब इट्स लाइक अ डेथ टू एनी कंपनी। तो मार्केट शेयर तो एटलीस्ट अगर 10% की ग्रोथ है तो 10% पे तो हर कंपनी एफर्ट अपनी कर रही होगी। उसके ऊपर जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा इस साल इन्फ्लेशन का नंबर रहता क्या है। अगर 4-5% की इन्फ्लेशन है तो 5% का वो इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर 15% की ग्रोथ आ सकती है। अगर ये इन्फ्लेशन फर्ज किया नहीं आती है, 1-2% की, या ये डिफ्लेशन होती है, तो अकॉर्डिंगली ये ग्रोथ का जो वैल्यू में नंबर है ये चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये अभी आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो टायर की सेक्टर में अगर देखें, लोकल मैन्युफैक्चरर 6-7 मैन्युफैक्चरर थे, आप लोग शायद अगर रिसर्च की हो, तो इसमें जो गैप है बिटवीन द लार्ज कंपनीज एंड बिटवीन द स्मॉल कंपनीज वो इंक्रीज कर गया है। तो विच मीन के बिजनेस कंसंट्रेट कर रहा है टू फ्यू ऑफ द, मतलब कपल ऑफ द लार्ज कंपनीज। तो अब गोइंग फॉरवर्ड भी अगर ऐसे ही चलता है तो वो एक एडिशनल शेयर भी बड़ी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी का एक फायदा होता है, अगर स्मॉल मार्जिन पे प्ले करती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेके तो वो मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं। तो इस वक्त रिसेंटली सबने अपनी कैपेसिटी, बड़ी कंपनीज ने कैपेसिटी इंक्रीज की है। तो हर एक की ख्वाहिश है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाए, और मार्जिन की तो ख्वाहिश होती है लेकिन पहला फोकस यही होता है कि अ, जो ग्रोथ है उसको, मार्केट शेयर को मेंटेन किया जाए। अगर एडिशनल आ जाए तो बेहतरीन बात है। जी जनाब। Thank you for sponsor. Usama Naeem, you can go ahead and ask your question. वालेकुम, जैसे उसामा फ्रॉम एकेडी सिक्योरिटीज। मेरे दो सवाल थे। एक तो थोड़ा सा पावर मिक्स अगर दोबारा से अपना बता देते कि आपका वापटा पे रिलायंस है या नहीं, और दूसरा कैप्टिव वाली जो आपने बात की कि गैस सप्लाई बंद नहीं होगी, उसको थोड़ा सा और अगर आप एलेबरेट कर देते, क्योंकि न्यूज़ में तो यही है कि कैप्टिव जितने भी हैं उनको आईएमएफ की तरफ से यही है कि गैस सप्लाई बंद हो जाएगी। सेकंड मेरा लॉन्ग टर्म अप्रोच में सवाल ये था। जी जी। जी, सेकंड मेरा जी ये जी था, आप। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑब्वियसली नॉट इन द नेक्स्ट ईयर और सो, लेकिन अगर 4-5 साल में देखें मूविंग फॉरवर्ड, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने का कहा जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हैम्पर होगी डिमांड वो मोटरसाइकिल्स और रिक्शा यूजर्स की होगी। तो उसका ऑल्टरनेटिव फिर आप लोग डिमांड आउटलुक में क्या देखते हैं, क्योंकि आप लोग 4 व्हील सेगमेंट में तो है नहीं, तो उसको कैसे ठीक फिर है, काउंटर या केटर करेंगे? जी आपके 3 क्वेश्चन है। पहला, जो जो हमारी पावर की कंजम्पशन है, वो हमारे पास दोनों सोर्सेज हैं। कोजेन भी है जो हम गैस से पावर बनाते हैं, फिर हमारे पास वापडा का भी ग्रिड है। तो हम देखते हैं किस वक्त किसका रेट चीपर है, तो वो चीपर सोर्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और सेकंड आपका था कि जी जो कैप्टिव पावर्स हैं, कैप्टिव में इन्होंने पहले भी 3-4 साल पहले भी इन्होंने बैन किया था, बट उसमें जो कोजेंस हैं जो डुअल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं अपनी कैप्टिव के लिए भी, और अ, जो गैस यूज़ करते हैं, क्योंकि गैस के लिए था वो बेसिकली ना। तो गैस की जिनके कोजेन हैं पावर में भी यूज़ करते हैं और आपकी स्टीम जनरेशन में भी यूज़ करते हैं, वहाँ उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट की थी। तो अभी तक वो एक्सेप्शन चल रही है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, प्लीज रिपीट करेंगे? Last question was with regards to the fact कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो हाँ रहा है हाँ हाँ और हाँ हाँ पब्लिक हाँ, ट्रांसपोर्ट आप बढ़ेगा। सही 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 सही। अच्छा सॉरी, अच्छा इसमें आप देखें, पाकिस्तान में अगर 4-5 साल पहले चले जाएं तो तकरीबन 2.3-2.4 मिलियन बाइक्स एनुअली प्रोड्यूस हो रही थी। आज वो 1.3-1.4 मिलियन पे ऑलरेडी आधी रह गई हुई है। इस वक्त सिर्फ जापानीज मैन्युफैक्चरर हैं या एक दो चाइनीज अपनी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो समझ लें वो तो डिमांड, और जो मैन्युफैक्चरिंग की लाइक सप्लाई है, ओईएम की जो प्रोडक्शन है, वो तो ऑलरेडी आपकी 50% डाउन है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप यू आर 5 ईयर हेड डाउन द रोड। उसमें तो ग्रोथ आती है 10% की, 12% की हर साल। तो वो ग्रोथ के फैक्टर को लेके भी आप आज ऑलमोस्ट 50% डाउन है। यहाँ ये जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें हैं, इन्फ्लेशन कंटेन कर रही है, इससे मोटरसाइकिल इट्स हाईली लाइकली दैट के जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर बिजनेस से आउट हुए हैं उनके लिए बिजनेस अगेन वाइबल हो जाए।
तो डिमांड रहेगी इसकी। जी अब्दुलरहमान भाई, मेरा ख्याल है आप कोई Perfectly well, sir. Thank you pending for all the नहीं। responses. Just one last question, if you'd like to take it, and that is with regards to will the company resume dividends in fiscal year 25? देखें, अब मैं जो इस दफा भी डिविडेंड ना देने का डिसीजन था, दैट वाज, मैं जस्ट एक आपको स्टेटमेंट ये दे सकता हूँ, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्पॉन्सरिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज they have always been of the view that we need to give dividend regularly, but just because of the major heavy capex, company contained itself not to share, not to like declare dividend. नोइंग दी, मतलब जो पिछले एक दो मीटिंग्स में जो मैनेजमेंट ने भी प्रेजेंटेशन दी, मैं उस पे मेरी अपनी इन्फ्लुएंस यही है कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू like announce the dividends no matter if it's higher or lower. तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मतलब ये कोई ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम जब आईपीओ में आए तब भी जो हमारे स्पॉन्सरिंग डायरेक्टर्स थे, हमारे जो जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो चेयरमैन थे, दोनों के ये थे कि हम, हमारा मकसद ही ये है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो यहाँ पे भी एक रीजनेबल रिटर्न वो अर्न करें। तो रिटर्न ऑब्वियसली डिविडेंड इज वन ऑफ द फैक्टर के जिसमें है, तो इसमें उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि उनकी प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगी उस स्टेटमेंट की बेस पे कि वो डिविडेंड को देते रहे। Understood, sir. Thank you so much for all your answers and your valuable insights about the industry and about the company. Without any more raised hands or questions in the chat box, and given that we are far past the hour mark, I think we can go ahead and safely conclude the session. Thank you, the management of PTL, for taking out the time. If you have any closing And remarks, thank sir, you please to go ahead. you, Abdur Rahman, as well. Sorry for interruption. You have organized this wonderful program. There were so many participants who gained insight from this session. Thank you so much for engaging us for this valuable discussion and for this seamless transition. Thank you so much to you, to Foundation Security team, all the people who have worked behind the curtain for this. Thank you so much, sir. It was a pleasure. And likewise, see you again next year, inshallah. And we wish Panther Tires the very best for fiscal year 25 and for the foreseeable future. Thank you. With that, we can conclude this session. Thank you, ladies and gentlemen, for your participation. You may now disconnect the call. Allah Hafiz.